Hello everyone, so today we are going to discuss stopping distance. So in automobile industry this term is widely used and it is very useful. Today we are also going to discuss about road safety, at what speed you should drive such that you can apply the brakes at right time. So let us take one example. Suppose you are in a bike, okay. आप इस बाइक पे सपोज जा रहे हो and suppose if you see some object suddenly and you have to apply the brakes, so it may be possible that when you apply the brakes then also you travel some distance and there may be chances of accident, right? So in this case stopping distance is, say when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance. जब आप ब्रेक लगाते हो तो ऐसा नहीं होता है कि उसी टाइम पे एट दैट मोमेंट योर स्पीड बिकम्स, योर वेलोसिटी बिकम्स जीरो. It will travel some distance and then after you meanwhile you keep on applying the brake, तब जाके आपका व्हीकल है वो exactly velocity equals to zero मतलब के स्टॉप पोजीशन पे आता है, राइट? तो यहाँ पे वही बात है कि how much distance the vehicle will travel if you apply the brake or say after applying the brakes, right? तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है इसमें, ओके. सो डिराइव एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, राइट? Derive an expression for stopping distance of a vehicles in terms of a v0 and a. So let us declare the terms. तो सबसे पहले what is v0? v0 is the speed at which you have applied the brake. v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी है. आपकी जर्नी ऑलरेडी चालू ही थी, आप बाइक में ऑलरेडी जा रहे हो, यू आर ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड यू सॉ समथिंग, राइट? आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट वाज योर इनिशियल स्पीड? योर इनिशियल स्पीड इज v0. अभी मैंने बोला 60 किलोमीटर पर आवर, सो दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो लेट अस मेक दिस थिंग क्लियर. इनिशियल वेलोसिटी, राइट? Another thing is, say let us say ds. D is for the distance and S is for stopping, okay. So ds is known as a stopping distance. Stopping distance, okay. Now another term is acceleration, okay. तो देखो यहाँ पे acceleration है वो actually braking है. बिकॉज वेन यू आर ब्रेकिंग, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो और अचानक से आप एक्सीलरेटर देना छोड़ देते हो और आप ब्रेक लगाते हो, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे ए है दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रेकिंग. जो हम ब्रेक लगाते हैं वो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच ऑपोजिट्स द वेलोसिटी, राइट? तो ये तीन टर्म्स हमारे बड़े काम की है इधर, ओके, इस डेरिवेशन में. नाउ फ्रॉम द काइनेमेटिक्स इक्वेशन, right? This is one of the kinematics equation, okay. What is the stopping distance? Stop जब होता है vehicle तब velocity कितनी होती है? So you know that is the vehicle अगर stop हो गया है, so its velocity is zero and I will consider this as a final velocity. Vehicle stop हो गया, that is final velocity. Vehicle जब start हुआ था, when it was ongoing, at that time its velocity is initial velocity, right? So it is v equals to 0. Now we are going to apply this equation. I am just rewriting the above equation. So v square equals to v0 square plus 2ax. ठीक है? अभी यहाँ पे I'll put the values. So v is 0 over here. Then after v0 square उसको कुछ नहीं करना है, let it be as it is. और यहाँ पे आएगा 2ax. Okay. So I am just writing it 2ax, right? We are interested to find out the value of x, which is a stopping distance. तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने रख दिया ds, okay. And now I am going to find out the value of ds. So ds can be given as minus of v0 square upon 2a, right? Okay. So as you can see in this equation, the relation between the stopping distance and the initial velocity is like स्क्वायर का रिलेशन है. ये किस तरह से? मान लो कि
यहाँ पे इफ यू आर ड्राइविंग विथ अ स्पीड ऑफ से x मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हो, ओके, देन सपोज द डिस्टेंस इज ds, बट इफ यू आर ड्राइविंग विद डबल स्पीड, अगर आप डबल स्पीड से जा रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट आएगा वो इसका स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर टाइम्स होगा, राइट, सो इट इज 4 टाइम्स मोर, राइट। तो ये बात आपको बराबर ध्यान में रखनी है कि इफ योर इनिशियल वेलोसिटी इज लेस then stopping distance is less, but if you are going to increase the initial velocity slightly more, तो यहाँ पे वो चेंज है वो ड्रास्टिकली बढ़ के आने वाला है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे व्हीकल्स चलाने चाहिए, राइट। एक यहाँ पे वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखी है, राइट। सपोज इफ यू आर ड्राइविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 11 मीटर पर सेकंड, 11 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नहीं है, ओके, मीटर पर सेकंड है, 11 मीटर पर सेकंड, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 10 मीटर्स, 10 मीटर, राइट। सो अभी मैं जो इनिशियल वेलोसिटी है आई एम इंक्रीजिंग इट बाय 4, मैं सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड ऐड कर रहा हूं इसमें, तो 11 प्लस 4 15 होगा, सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो तो डबल हो गया, राइट, इट डबल्स 20 मीटर्स, तो आपको 20 मीटर पहले से ब्रेक लगानी होगी, तब जाके आपका जो व्हीकल है वो रुकेगा एंड यू कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट, राइट। देन आफ्टर 15 में से 20 मतलब कि यहाँ पे सिर्फ आपने 5 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे आपने 4 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे यू हैव जस्ट इंक्रीज द वेलोसिटी बाय 5 मीटर पर सेकंड, बट ओवर हियर यू कैन सी दैट दिस इज a difference of 14, यहाँ पे ये 14 का डिफरेंस आ गया है, राइट, ओके। एंड देन आफ्टर अगेन अगर हम 5 से इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो 50, सो इट इज लाइक 16 का डिफरेंस आ गया है, राइट। यहाँ पे 5 का डिफरेंस और यहाँ पे 16 का डिफरेंस, राइट। इट इज ड्यू टू दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशनशिप है स्टॉपिंग डिस्टेंस के साथ, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। एंड द व्हीकल्स आर बीइंग डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट, या फिर उनकी जो ब्रेक है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए। देखो इसमें हमने ये पैरामीटर की बात की, लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में सोचो कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, ब्रेकिंग, तो हमारी ब्रेक इतनी पावरफुल है कि विच जनरेट्स रिटार्डिंग फोर्स, या फिर डी एक्सेलरेशन इतना बड़ा है कि आप डीएस को कम कर सकते हो। इन बाइक्स वी आर हैविंग नॉर्मल ब्रेक्स, ओके, देन इन बाइक्स वी आर आल्सो हैविंग ड्रम ब्रेक्स, ओके। तो ड्रम ब्रेक्स में क्या होता है कि जैसे आप ब्रेक्स लगाते हो तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल अदर बाइक्स। रेसिंग बाइक है उसकी ब्रेक की डिजाइन पे भी इतना ही वर्क होता है जितना उसकी हाईएस्ट स्पीड पे काम करने का होता है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको ये इक्वेशन अपने दिमाग में रखना है एंड यू शुड नो व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। This kind of questions, आपको कुछ वैल्यू दी गई है and this kind of questions may be asked in your MCQs or 1 mark question, right? Okay, thank you.